مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. جو آپ بار بار کرتے ہیں نا کہ چندہ مانگتے ہیں علماء کرام, یہ علماء کرام کی انسلٹ نہ کریں. جب انجینئر صاحب نہیں کرتے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا, تو بزرگ تو پھر وہ کوئی شے ہی نہیں ہے. اتنا بھی نیک کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ اللہ سے واقعی ڈر لگتا ہے, قبر سے ڈر لگتا ہے, قبر میں جانا ہے, جا کے جواب دینے ہیں. بے شک یہ کنفیوژن امام صاحب دور نہیں کر سکے, نہیں کر سکے, بلکہ وہ تو اور ہی وہ ہی مجھے کہتے تھے کہ دربار سے جا کے مانگو. اللہ ہو. پہلے تو یہی پتا تھا بس داڑھی رکھ لو اور کپڑے شلوار کی پہنو تو ہم مسلمان لگیں گے. جو بندی بھی کہانیاں کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو بالکل کہانیاں تو بریلوی کرواتے ہیں, ہم تو بالکل سیدھا چلتے ہیں. یہ دونوں بہن بھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال میں چونکہ ریکارڈنگ اب ختم ہو چکی ہے, حال میں آئے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا دیکھا کیا سیکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ شہاب احمد. شہاب احمد کدھر سے آئے ہو؟ میں لاہور سے. کیا کرنے آئے تھے؟ میں انجینئر صاحب سے پہلی دفعہ ملنے آیا تھا اور یہ سارا ماحول دیکھنے آیا تھا. دیکھ لیا ماحول؟ ہاں جی. ہو گئی ملاقات؟ ہاں جی. تعارف کیسے ہوا تھا ان کا, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ نہیں, شروع میں تو نیگیٹو ہی ہوا تھا. اچھا, پازیٹیو کیسے ہوا تھا؟ پازیٹیو یہی کہ ہم نے جب خود ریسرچ کی اور ان کی باتوں کو کراس ویریفائی کیا تو تب ہم نے ان کو دیکھا کہ نہیں پازیٹیو ہے. پورا پروگرام دیکھا آج؟ ہاں جی الحمدللہ. کوئی ایسی بات جو انجینئر صاحب سے آپ نے سیکھی ہو آپ کی لائف میں, انجینئر صاحب کو سننے کے بعد چینج کیا ہے؟ کسی بھی چیزوں کو تب تک اس پہ عمل نہ کرو جب تک ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے, کریٹیکل تھنکنگ. بے شک میں نے یہ چیز سیکھی. یہ چیز سیکھی. ٹھیک ہے, اندر گیا تھا پکچر بنوایا؟ ہاں جی بنوا لی. کیا لگتا ہے کسی بھی بڑے عالم دین کے ساتھ ملنا کیا اتنا ہی آسان ہے جتنا انجینئر صاحب بیٹھ کے لوگوں سے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا نام ہے؟ اصغر علی. اصغر صاحب کدھر آئے ہو؟ کراچی سے. کراچی سے آئے ہیں, ماشاء اللہ. کیا کرنے آئے تھے؟ میں علی بھائی سے ملنے آیا ہوں, کافی عرصہ ہو گیا. اور بھی کوئی کام تو نہیں تھا؟ نہیں اور کوئی کام. اسپیشل ملنے آئے تھے؟ ماشاء اللہ. مل لی آج؟ ہاں فرسٹ ٹائم آیا؟ فرسٹ ٹائم آیا تھا. پروگرام اور رات کو 3:30 بجے پہنچا ہوا تھا. اچھا. تو یہی ٹائم میں نے ایکسپینڈ کیا ہے. میں نے کہا نہیں اس دفعہ جو علی بھائی سے مل کے جانا ہے. تو علی بھائی کا ماشاء اللہ سارے کریڈٹ ان کو جاتا ہے. جو چیزیں علماء کرام نے جو ہے وہ بند الماریوں میں رکھی ہوئی تھی تو انہوں نے کھول کے بتا دی, یہ ان کا احسان ہے, ورنہ ہم اسی طرح پھر انہیں گمراہیوں میں رہتے. جو ہمارے بڑوں نے بتایا ہوا تھا ہم اسی پیٹرن پہ چلتے رہتے. لیکن جب ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے کہ یہ معاملات کیسے ہیں تو وہ کہتے تھے ان باتوں میں نہیں جاتے, آپ اپنی نماز پڑھو دیں. لیکن جب انہوں نے اویئرنیس دی ہے تو پتہ چلا, جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا, تو پھر تو باقی تو علی بھائی والی بات ہے کہ شاہی کوئی نہیں ہے. تو پھر ہم نے تو اسی کو فالو کرنا ہے. اگر دین کو کسی نے نقصان پہنچایا, وہ اس میں میرے والد ہوں یا میرے بزرگ ہوں یا کوئی بھی ہوں, تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا, تو بزرگ تو پھر وہ کوئی شے ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے انجینئر صاحب کو سننے کے بعد آپ کی لائف میں کیا چینج آیا؟ اچھا, میری لائف میں چینج یہ آیا ہے کہ پہلے جو ہے نا متزلزل سی طبیعت ہوتی تھی. مطلب میں دیوبند مسئلے کو فالو کرتا ہوں. میرے والد صاحب دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے. اچھا ماشاء اللہ. جی, ابھی دوسرا سال ہے انتقال ہوا, تو ان سے بھی میں یہی ڈیبیٹ کرتا تھا کہ واقعہ کربلا کے بارے میں, امیر معاویہ کے بارے میں. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں کہ یار اہل حدیث کی بھی کوئی بات صحیح ہوگی, کوئی دیوبند بھی صحیح کہتا ہوگا, کوئی بریلوی بھی صحیح بات کرتے ہوں گے. یہ ساری مطلب اختلافی چیزوں میں وہ بولتے تھے ان میں نہیں پڑے, لیکن ہمیں نقصان ہی ہوتا تھا, دل دکھتا تھا. جو علی بھائی نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ میرے نبی کی محنت کو اس طرح سے ضائع کر دینا, اس طرح سے لٹا دینا. فرقہ واریت کی لعنت, فرقہ واریت میں صحیح بات. مطلب وہ کہتا ہے کہ وہ کافر, وہ کہتا ہے وہ کافر ہے. اچھا, پھر ان پہ بلیم ہوتا ہے کہ جی ان کے پاس ڈگری نہیں ہے. تو یار وہ علم کی حیثیت ہے نا, اگر جس کے پاس ڈگری ہے تو وہ دوسرے بھی تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے نا, تو اس کی ڈگری تو ایسی ہی ختم ہو گئی.
तो ये इससे बड़ा दिल दुखता था। और मैं अपने ऑफिस में अपने लोगों में वो कहते हैं यार तुम देवबंद की औलाद में से चले हो, तुम्हारे बाप इतने बड़े आलिम थे, तुम ये किसको सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो। मैंने कहा यार मैं हक और सच को साथ देने वाला हूँ, मुझे आगे अपने वालिद को जो चेहरा नहीं दिखाना, मैंने अपने नबी को चेहरा दिखाना। ज़बरदस्त, हाँ। ठीक है, तो मुझे ये बात ज़्यादा होती थी। अपने बच्चों को भी मैं यही कहता हूँ हक और सच में, अगर आपका बाप भी मुजरिम है तो उसको भी कसूरवार ठहराना है आपने। सही बात, ठीक है, बिल्कुल। और हक का साथ देना है। आज मुलाकात होगी अली भाई से, हाँ अली भाई से मुलाकात हो गई है, तस्वीर में यादगार पिक्चर बनाई। क्या लगता है इंजीनियर साहब ने जो ये लोगों के अंदर यंग जो यूथ है हमारी, उनके अंदर एक बिजली सी भर दी है दीन के वाले से, क्या ऐसा जो उलमा नहीं कर सके? इसमें मुझे जो फील होता है ना कि हमारे बीइंग अ नेशन और उम्मत भी ऐसा लगता था कि जैसे वो भेड़ों का रेवड़ नहीं होता सही बात है, वो उसको जिधर से उसने मोड़ दिया वो उधर को चल पड़ा। ठीक है, उसको नहीं पता मेरी मंजिल क्या है, मुझे मकसद क्या है, मुझे आने का मकसद क्या था, मंजिल कहाँ है, पहुँचनी क्या है। इन्होंने ऐसा लगता है कि हमें जो है ना ज़िंदगी गुजारने का जो मेरे नबी ने चीज़ें बताई हुई थी और जिस तरह से गुजारना था, जो हमें उलमाए किराम ने सही तरीके से हमें मैसेज नहीं कन्वे किया, तो वो मुझे फील होता है कि इन्होंने जो लोगों में बिजली भरी ना। आप देखें हम महंगाई से भी तंग है, ठीक है, नौकरियों से भी तंग है, लेकिन किरण ऐसी लगती है कि यार अली भाई ने जो दे रहे हैं तो वो हम कहते हैं कि यार अगर मैं भूखा भी मर जाऊं लेकिन दीन पे मर गया तो मैं आके सुरखरू अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है, सुरखरू हो गया। तो मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ भरी है ना, ये हम चल रहे हैं, वरना ये मुल्क तो कब का जिस तरह से लूट के खा गई कब का ख़त्म हो चुका होता। तो ये अली भाई की मेहरबानी, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। मैं इसीलिए आया, मैंने कहा यार एक बंदा इतना मतलब उनके ऊपर अटैम्प भी हो चुके हैं, ठीक है। घर में वाइफ मुझे यही कह रही थी कि यार अली भाई, वो भी दुआ करती हैं, वो भी सुनती हैं, कह रही देखें यार ये अकेला मुजाहिद, इसकी भी फैमिली है, इसके भी बच्चे हैं, ठीक है। तो ये अगर मुजाहिद लगा हुआ है तो हम इतनी दूर से सिर्फ मिलना भी ना चाहें। मैं रास्ते में यही दुआ करता हुआ आ रहा था कि अल्लाह ये जो बंदा है जिस तरह मेहनत कर रहा है ना, तो हमारी तो कोई ज़िंदगी मतलब उस तरह से नहीं है, लेकिन अब सीख रहे हैं। और मतलब मेरी कोशिश यही है कि अपने लोगों में जाके अवेयरनेस तो कम से कम करूँ ना। सुनता है ठीक है अली भाई वाली बात है, सुनता है ठीक है, नहीं है तो मैंने तो अपना काम करना है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए नबी तू इतना ना कम कर, तू अपना मैसेज दे, बाकी बिल्कुल अपने हिस्से का काम कर दिया। हमने भी उनका ऐसा स्टूडेंट, उनसे काम सीखेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? नईम हुसैन। नईम हुसैन। नहीं भाई, किधर से आए हो? सकरदो से आए, पाकिस्तान से। माशाल्लाह, क्या करने आए थे? खुसूसी दरस सुनने आए थे, अली भाई से मिलने आए थे। अच्छा, सुन लिया जी। इनका तारुफ कैसे हुआ था? इसका तारुफ हम यूट्यूब पे। अच्छा हुआ था, ये बुरा हुआ था? अच्छा हुआ था। अच्छा जी, इनके बारे में अच्छा सुनना? जी जी। सकरदू में इनके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल खुल के वो हदीस बयान करते हैं जो उलमा हमें बयान नहीं करता था, जो हक बात करते हैं माशाल्लाह। तो काफ़ी अली भाई का स्टूडेंट है, सुनता है यूट्यूब वगैरह पे, तो उसको हमें मिलने की बहुत आरज़ू था। तो आज मौका मिल गया अल्लाह के करम से, तो हम अली भाई से इधर खुसूसी मिलने आए। तो अभी मुलाकात हुई? जी जी, मुलाकात। प्रोग्राम इशारा देखा? जी, प्रोग्राम हम कितने बजे आए थे आप सुबह? हम उधर 7 सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद इधर आए थे, करीबन 9 बजे इधर पहुंच गए थे। जी, नाश्ता वगैरह इधर ही किया? नाश्ता वगैरह सब इंजीनियर साहब स्पेशल कहते हैं जो भी बाहर से हमारा नाश्ता भी लाजमी करें। नाश्ता वगैरह सब भी कुछ इधर अच्छे अंदाज से किया, बहुत अच्छे मेहमान नवाजी भी थे। अंदर गए, पिक्चर बनवाए? जी, अंदर गए थे, फोटो बनवा के मिल के भी आए हैं। सही हो गया। कोई पैसे से चंदा देखा किसी को देते हुए? नहीं, नहीं। अच्छा, चलो, बहुत शुक्रिया। आओ जी, नेक्स्ट आए आ जाओ, आप भी साथ आ जाओ, आगे आ जाओ। एक बंदा इधर आ जाए ना। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शहजाद नाम है। शहजाद नाम है आपका? अब्बास मान। भाइयों, दोस्तों, कज़न हो? दोस्त हैं। दोस्त हैं जी। इंजीनियर साहब का तारुफ किसने किसको करवाया? आपने इसको करवाया, इन्होंने आपको करवाया? उनने मुझे करवाया। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ? पहले तो नेगेटिव हुआ था, वही जो कुफर के फतवे वगैरह लगाते थे, मौलवी वगैरह जो अपने सुनते थे, जिस मस्जिद में जाते थे यही होता था कि इंजीनियर को नहीं सुनना। फिर सुना, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तारुफ हुआ। काफ़ी साल हो गए मुझे इंजीनियर साहब को सुनते हुए, तकरीबन आता भी रहता हूँ अकेडमी में भी। फिर मैंने दोस्तों को दावत देना शुरू की, घर पर दावत देना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त भी आ गए काफ़ी ज़्यादा, इसी दावत की वजह से अल्लाह की तरफ जुड़ गए हैं और अल्लाह के दिन की तरफ जुड़ गए हैं, और घर वाले भी माशाल्लाह काफ़ी हो गए हैं। अच्छा, क्या लगता है इंजीनियर साहब को सुनने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया?
क्या ऐसी बातें थी यार जो और उलमा की नहीं समझ पाए, इंजीनियर की समझ पाए? सिर्फ अल्लाह की बात जो है ना, अल्लाह की तौहीद की बात, जैसे इंजीनियर साहब के समझाने का तरीका एक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ आती है। उसके अलावा जो नबी वसल्लम का फरमान है, अहादीस हैं, सही हदीस से कि तौहीद जितनी सहत है वो बताया इंजीनियर साहब ने, क्योंकि बाकी तो वो नरम बातें वो तो समझ में नहीं आई। नमाज भी नहीं थी पढ़ते पहले, अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज अब छोड़ने को दिल नहीं करता, डर लगता है अल्लाह से, जो सही बात है। अब नमाज भी नहीं छोड़ते अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना भी नेक काम कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि अल्लाह से वाकई डर लगता है, कब्र से डर लगता है, कब्र में जाना है, जाके जवाब देने हैं, बेशक जी, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है अल्लाह से, बेशक। अल्लाह बहुत। अच्छा जी, आपको क्या, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया इंजीनियर साहब को सुनने के बाद? मैं तो पहले सुनता था, इधर से ये बताता था मुझे, मैं घर जाके अपनी मस्जिद इमाम साहब से पूछता था, वो कुछ और बताते थे। मुझे ज़हन में ये था कि दरबार गैरुल्लाह से पुकारना शिरक है। वो कहते थे डायरेक्ट मांग सकते हैं, ये कहता था नहीं मांगते थे शिरक है। मैं खुद भी सोचता था, जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब भी कभी मांगा है अल्लाह से मांगा है, तो हम क्यों दरबार पे जाके मांगे? बस यही मेरे ज़हन में था। मैं बोला कि आज चलते हैं, तो फिर आए इधर सुनने आके, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये कन्फ्यूजन इमाम साहब दूर नहीं कर सके? नहीं कर सके, बल्कि वो तो और ही वो और ही मुझे कहते थे कि दरबार से जाके मांगो। अल्लाह अकबर। तो वो कैसे देते थे, डॉक्टर दवाई देता है, हम डॉक्टर से जाके दवाई मांगते हैं। वो जो कहानियाँ कराते हैं, कहानियाँ सुनाते थे आगे से, फिर ज़हन में बोझ बना रहता था। यही वजह ना कि आज ये सारी यंग जनरेशन है, इसलिए तो ये सारी इन लोगों से तो जो टूट के इधर आई हुई है ना जी, बिल्कुल इन लोगों से मायूस होके इधर आई हुई है, मायूस हो। अच्छा, अंदर गए थे, पिक्चर बनवा के आए हो? अभी जाना है, तो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, रश आ गया, तो फिर मैंने बोला रश खत्म हो, फिर जाते हैं जाके। आप अंदर गए थे पिक्चर बनवा के? अच्छा, आपने भी जाना, चलें, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद शहरियार है। शहरियार, किधर से आए? मैं लाहौर से आया हूँ। बारिश की वजह से ना हम लेट आए हैं यहाँ पे, मैं सवाल लेके आया था। हम लाइफ पहले चेंज हो गई थी डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वजह से, माशाल्लाह ताला। तो उनके बाद इनकी तौहीद वगैरह पे हम बड़े ओके थे, एग्री थे कि बहुत नाइस आदमी है। लेकिन हम हज़रत मुआविया का जो इनका टॉपिक है, हम उस मौजू पे और भी उलमा इकराम के पास गए हैं, आपको पता है सब इनको बुरा भला कहते हैं। तो हम तिकुड़ ईमान अलवी साहब के पास गए, उन्होंने हमें हदीस सही बुखारी खोल के दिखाई, इन्होंने तर्जमे गलत किए हैं, उन्होंने अब हमें सही बुखारी खोल के दिखाई है। इन्होंने मलूकियत का मतलब काट खाने वाली कौम और ऐसे का तर्जमा किया, हालांकि वहाँ पे था मलूकियत का मतलब है बादशाहत। अब वो कैसी बादशाहत, वो अगली हदीस में, और इनकी 4 पंफलेट के 4-5 मतलब जो भी इन्होंने हदीसें बयान की वो ज़ईफ़ हैं। हम ये सवाल करने थे उनसे कि आप हमें बताएं, लाहौर से हम आए, बारिश में भीगते आए, तो लेकिन हम लेट हो गए, जिसकी वजह से हम सवाल नहीं कर सके। तो यार ये तो सारे टॉपिक्स इन्होंने पहले कवर किए हुए हैं ना, वो देख लो, रेफरेंस भी साथ लगे हुए होंगे, सारे देख के आए हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो पंफलेट में आपने ये लिखा है ये तो ज़ईफ़, हम जब बुक से देखा है कि ज़ईफ़ है, तो फिर हम सही बुखारी से देखा है नीचे कि ज़ईफ़ नहीं। वो तो इंजीनियर साहब का भी मौक़िफ़ होगा ना इसके ऊपर, वो कह रहे होंगे कि जितने भी बड़े आइमा है ना, उनमें से किसी न किसी ने इसके ऊपर सही का हुक्म लगाया होगा, वो तो ये स्टार्ट में कहते हैं। चलें अब इंशाल्लाह हम इनके दोबारा वीडियो देख लेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आओ जी, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मौज़म। मौज़म, आगे आगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वारिस नाम है? वारिस अली। दोस्तों भाइयों क्या हो? दोस्त हैं हम। तारुफ किसने करवाया था इंजीनियर साहब का, आपने इनको या इनको आपको? नहीं, इंजीनियर साहब को तो हमने ऑनलाइन शुरू किया था, मेरा छोटा भाई है वो काफ़ी सुनता है उनको ना, तो उस वजह से उन्होंने भी कल आना था आज, लेकिन वो कुछ मसरूफियात की वजह से उसको तो बल्कि जुनून था ना कि जाना है। वो ये फिर भैया इन्होंने कहा कि चलते हैं, तो उस वजह से आए हैं। आप लेके आए भाई को? जी मैं लेके आया हूँ। इंजीनियर साहब का तारुफ आपको कैसे हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव? सर जी बात ये थी कि मुझे जब मैं पाकिस्तान रहता नहीं हूँ, पर मुझे पाकिस्तान आया तो फ़िरक़ों का बहुत निज़ाम था, मुझे इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूज़न थी, पर मैंने ख़ुद रिसर्च जब की तो फिर मुझे मिर्ज़ा साहब की काफ़ी बातें अच्छी लगी। काफ़ी लोग अभी भी नेगेटिव ही कहते हैं कि यार आप उनको क्यों उनकी क्यों सुनते हैं, ये है वगैरह वगैरह, पर मुझे इस चीज़ का कोई मिर्ज़ा साहब ने आपको फ़िरका बताया अपना? नहीं। अच्छा, ये बगैर फ़िरके के ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मुस्लिम है? मुस्लिम, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन है उसके ऊपर चलें। जी बिल्कुल यही है। तो इंजीनियर साहब का तारुफ आपको हो गया जी। आप मुझे ये बताएं कि जो इतने बड़े बड़े उलमा थे, जी उन्होंने इस उम्मत को क्या दिया जो इंजीनियर साहब आज ये सारी उम्मत खींची चली आ रही है? सर जी मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ जो मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट करती है, वो ये है कि इन्होंने दीन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बताया कि काफ़ी आसान है, बजाय जो बड़ों ने बिल्कुल मुश्किल बताया, जिसकी वजह से आवाम ने कभी इस चीज़ को सीरियस ले नहीं पाया, क्योंकि वो इतनी मुश्किल थी, लोग कहते हैं यार हम कर नहीं पाएंगे दीन को। सही बात है। तो उसकी वजह से जब मुझे पता चला यार इतना आसान है, जब मैं खुद अमल करता हूँ तो
बस मुझे कभी किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, हालांकि सुनता सबको है, बट जो जब तक वो रेफरेंस नहीं देते तब तक मैं उनके बारे में उनको चीज़ अमल नहीं करता। तो अच्छा, आपको कितना अर्सा हुआ सुनते हुए इंजीनियर साहब को? सबसे पहले तो हम ना जाते थे, कह लें जब छोटे होते थे ना, आपने नाम सुने होंगे हकबहू सरकार, लाला सरकार, वो ऐसा हमारा कोई नहीं था माइंड में, हमें तो पता भी नहीं होता था, आपको पता है हम कोई इस तरह का आइडिया नहीं था। लेकिन वो दाता साहब जाते थे, बड़े शौक से जाते थे। जी जी, ऐसे जब कह ले कि समझ नहीं थी, सारा कुछ नहीं था, और लेकिन वो जाके चंदा वो सारा चीज़ें वो देख गए, वो सारी मेरे ख्याल से ज़्यादा कारोबार है। इधर कोई चंदा नहीं दिया? किधर कुछ भी नहीं। अच्छा, उधर मेरा कहने का मतलब ये है बैंक मैनेजर, क्योंकि उधर देखा अक्सर जाके नीचे महीने बाद पैसे जब वो गिनते हैं ना, पैसे गिनते हैं, तो पता नहीं कोई बड़ी बैंक का मैनेजर और उसके पता नहीं कितने ऑफिसर वगैरह आगे लाखों करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा होता है, वो कहाँ जाता है? वो सारा किधर जाता है? किधर जाता है? यही तो मसला है। सही हो गया। अच्छा, ये बताओ, आपने इंजीनियर साहब को सुना, जी, जब से सुना, लाइफ में क्या चेंज आया? इंजीनियर साहब को मैंने इतना नहीं सुना, शुरू में सुनते थे, लेकिन वो उसमें उसके बाद वो सीधी बात करूँगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस लाइक इसके बाद ये आपको पता है आ गया था पीछे लाइक 2 माह पहले ही वो जो पीटीआई का था इशू, उसमें भी वो टिकटॉक पे आपको पता सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं, अब तो वो दौर वो नहीं रहा ना, छींक भी है तो सोशल मीडिया पे चल जाती है, ये चीज़ है। तो उस वजह से वो थोड़ा ये है कि थोड़ा सा अगर करना है तो सियासत को थोड़ा सा यानी कि साइड पे रखनी चाहिए। आज भी इंजीनियर साहब से वो क्वेश्चन होने थे ना, सियासत लाइक नहीं, अभी आज वो क्वेश्चन होने थे, उन्होंने बोला था कि जो इमरान खान साहब उन्होंने बताया था नाम है जिनका, तो वो कह रहे थे कि अब सियासत पे कोई बात नहीं होगी, हर चीज़ जो है वो इलेक्शन है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज भी ना इंजीनियर साहब बड़े हैं माशाल्लाह, हम उनकी इज्जत का, हम फैसलाबाद से हैं इसलिए। मैंने ये सारी प्रेडिक्शन पहले से की हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने कहा हुआ था। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि उसमें लिहाज से ना थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, अपनी जो फील्ड है ना, मैं दूर ही है ना यार, वो तो लोग सवाल करते हैं ना, क्योंकि इससे आपको भी पता है कि वो हर चीज़ खराब होती है उनकी। हाँ, सही हो गया। अंदर गए थे, पिक्चर बनवाए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बनवाए हैं? जी बिल्कुल। क्या लगता है पाकिस्तान में और भी किसी बड़े आलम दीन से इस तरह मिला जा सकता है इंजीनियर साहब जैसे आवाम से मिल रहे हैं? नहीं, मैं बहुत सरप्राइजिंग था, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो फिर वो इतनी सिक्योरिटीज़ और ये सब कुछ वो जैसे वो करते, जैसे वो घूमते, ऐसे लगता है जैसे वो अरबों के मालिक है। तो जी बिल्कुल, बहुत सादे दिल के इंसान है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आज भी काफ़ी यही फील हुआ जो मुझे पहले फील होता था कि इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना के किया है। और बिल्कुल जब तक रेफरेंस नहीं है, जब तक जो बिल्कुल साबित है, उसके अलावा अगर आप कुछ और घूमते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। जी। और उससे बढ़कर जब हम सुनते थे ना, हमारी यूनिवर्सिटी में एनटीयू में मैं पढ़ता था, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की है, काफ़ी उलमा कराम आए, सुलेमान मिसबाही साहब, और सबसे बढ़कर बात ये है कि अब जो बात करते हैं ना, लाइक फ़िरके की बात करते हैं, बाबों की बात करते हैं, अब वो पकड़ी जाती है, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया ऐसे ही है। पहले करते थे, पहले भी बातें करते थे, अगर लोग उस पर अमल नहीं ना करते थे तो लोग रिएक्ट भी नहीं करते थे। अब लोग रिएक्ट करते हैं। हाँ, अब लोग रिएक्ट करते हैं, अगर अमल नहीं करते थे वो रिएक्ट। जैसे वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान है, जिन्होंने लोगों को सोचना बताया, वैसे ही मिर्ज़ा साहब ने दीन के ऊपर लोगों को सोचना बताया कि सोचें यार आप क्या कर रहे हैं आप। जी ऐसे जी बिल्कुल। चलो जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद उमर भाई किधर से आए हैं? मैं गुजरावाला से। गुजरावाला। क्या करने आए थे? इंजीनियर साहब को सुनने के लिए आए थे। सुन लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुना आज? ये बताएं, इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ था आपको, नेगेटिव पॉजिटिव? यूट्यूब से हुआ था, दोनों तरह से हुआ, पॉजिटिव भी हुआ था, नेगेटिव भी हुआ था। इससे पहले कौन से फिरके से तल्लुक था आपका? इससे पहले अहले सुन्नत वल जमात से। बरेलवी से या देवबंद से? जी बरेलवी देवबंदी से। देवबंद से। अच्छा, क्या ऐसी वजह थी कि यार देवबंद में तो इतने बड़े बड़े उलमा हैं, इंजीनियर साहब को सुनने की क्या नौबत आई? हम सबको सुनते हैं माशाल्लाह, हर मतलब फिक्र को सुनते हैं। चेंज किस कोई लाइफ में चेंज कौन लेके आया? चेंज अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की तरफ से आई है। वालिदैन माशाल्लाह मुसलमान थे, उन्होंने कलमा पढ़ाया माशाल्लाह, उसमें उन्होंने दीन सिखाया, कुरान पाक पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी इंजीनियर साहब को सुन के भी कुछ चेंज आया लाइफ में? बस मालूमात में इजाफा हुआ है माशाल्लाह। हाँ, मालूमात में इजाफा हुआ। और ये मालूमात आपको उससे पहले नहीं मिली? मैंने आपसे एक सवाल करना था, आप अगर जो आप बार बार करते हैं ना कि चंदा मांगते हैं उलमा कराम, ये उलमा कराम की इंसल्ट ना करें, जब इंजीनियर साहब नहीं करते तो आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं लोगों से पूछता हूं यार, उनकी बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के लिए चंदा जमा किया था कि नहीं किया था? सही है, किया था।
साहब का चंदा जमा किया था। बाहर आपने लिखा हुआ बयान हनफी में लिखा हुआ कि इख्तिलाफी बातें यहाँ नहीं होंगी। ब्रदर आप मेहरबानी करें ऐसे ना करें, इससे दिल दुखता है हमारा ना। सर आपका दिल नहीं दुखना चाहिए, करोड़ों लोग और भी है जो देख रहे हैं, ये असल में ये होता है जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये लोग चंदा लेते हैं, उनको भी तो बताना है कि नहीं बताना, आवाम के चंदा जरिए। तो सही काम के लिए लेते हैं ना, जो गलत लोग हैं तो हर जगह चंदा तो लेते हैं। सर आप इस चीज फिक्र को छोड़ दिया करें, आगे चले जाया करें। नहीं आगे में से की बात गलत है तो आप गलत बात को सही करें ना। सर आप कह रहे हैं ना, ये इतने बंदों ने किसी ने कोई शिकायत नहीं मैंने की, ये आपको अच्छी नहीं लगती हो, छोड़ दा। मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक होगा, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जी। माशाल्लाह ताला। अली भाई किधर से आए? मैं वैसे तो लाहौर से आया हूँ, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया होता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ। इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? इंजीनियर साहब का तारुफ पहले तो नेगेटिव ही हुआ था। मैं 2019 में गया था ऑस्ट्रेलिया, तो तब तक मैं TLP के साथ था और बरेलवी मसलक से था। तो पहले अल्लाह माफ़ करे मुझे, इंजीनियर साहब को गलत ही कहते थे हम, लोगों से बहस करते थे कि इंजीनियर नहीं सही है, छोड़ो पढ़ा के पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाके बंदे का ज़हन खुलता है। 2021 के शुरू में सुनना शुरू किया, इंजीनियर साहब को ख़ुद पता चला कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें उलमा के नाम बताते हैं उनसे हट के हैं। फिर इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, फिर डॉक्टर सार अहमद साहब को। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब को सुन के इंजीनियर सही हुआ, उससे पहले सही नहीं नहीं, हुआ? उससे पहले सही नहीं था, क्योंकि दोस्त थे कुछ पाकिस्तान में, जिस फिरके में हम थे बरेलवी था। तो ये दोस्त फिर भी लोगों वैसे- को बताना चाहिए ना, आप लोगों को जैसे हम- लोगों को चाहिए कि लोगों को बताओ कि एक मैं दफ़ा सुनो ज़रूर अपने यार। दोस्त को भी लेके आया हूँ, अपने भांजे को भी लेके आया हूँ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज। तो सोशल मीडिया पे भी पोस्टें करते रहते हैं जितना हम कर सकते हैं। बाकी अपनी फैमिली के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मेरी शादी हुई है, मेरी वाइफ भी बरेलवी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फ़िरका तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मतलब दूसरे महीनों में वो भी मेरे फ़िरके में आ गई हैं। वो भी मुस्लिम हो गए यार, फिरके से तो बाहर निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुस्लिम फिरके से तो बाहर निकल रहे हैं। शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं इंजीनियर साहब को सुनने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया? इंजीनियर साहब को सुनने के बाद लाइफ में बहुत सी चेंजेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह के माहौल में मैं रहता हूँ, एक नमाज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता था, लेकिन पाबंदी नहीं हो पाती थी क्योंकि छूट जाती थी नमाज़ें। ये कॉन्सेप्ट नहीं था पता कि इकट्ठी भी कर सकते हैं। जब से इंजीनियर साहब ने बताया है और ख़ुद वेरीफाई किया हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी 2-3 सालों से कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। तो सबसे बड़ी चेंज तो ये है। और दीन का अच्छा जो सही फ़हम है वो आया कि जो सही मायनों में दीन, पहले तो यही पता था बस दाढ़ी रख लो और कपड़े शलवार की पहनो तो हम मुसलमान लगेंगे, लेकिन अब पता चला है कि नहीं, आपके जो अमाल है ना वो होने चाहिए मुसलमानों वाले, तो उसी से आखिरत आपकी बनी। आज सारा प्रोग्राम देखा? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अंत तक सारा ठीक हो गया। ये जो लोग आए हुए होते हैं, ये एक तो एलिगेशन इनके ऊपर लगाते हैं कि ये अपने बंदे होते हैं, आपको क्या लगता था ये बंदे अपने होते नहीं हैं? अपने बंदे सवाल हो नहीं ना सकते अपने बंदे। मैं क्योंकि नहीं, मैं तो ये इसलिए पूछता हूँ कि जी, उलमा, जी, पता आपको इनके लोग जो है ना वीडियोस बनाते उलमा हैं। तो आज तक यही कहते आए हैं। मैं इसलिए आपको बता 2021 से पहले मैं भी उलमा कराम के पीछे चल के यही था कि इंजीनियर गुमराह है। अच्छा। लेकिन जब खुद देखा, मैं लोगों को भी कहूँगा खुद आके देखें, उन्हें खुद आके देखें, खुद सारा पता लग जाएगा कि लोग इनके बुलाए हुए हैं या खुद अपनी मोहब्बत से आते हैं इधर। अंदर गए थे पिक्चर बनवाए? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब तक वो बरेलवी थे, मुझे सच्ची सच्ची बताइएगा, किसी भी बड़े आलिम दीन से मिलना इतना आसान था? नहीं कभी मिला ही नहीं, कभी बस हाथ चूमने और तक अगर होता मिलना था। होता तो? ना उनको मुश्किल काम है। महफिलों में बस देखते थे उनको और तजस्सुस उनका हाथ चूम ले। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह हिदायत दे हम सब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नदीम अहमद। नदीम अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? नईम अब्बास। नईम अब्बास। दोस्तों, भाइयों, कज़नों, क्या हो? ये मामू है मेरे। मामू और ये भांजा। किधर से आए आप लोग? मैं सरगोदा से। और आप? दोपसड़ी से। वो भी सरगोदा में ही? जी सरगोदा। अच्छा, विलेज का ये बताएं जी, आप इसको लेके आए, ये आपको लेके आए? नाम। मैं इनको लेके आया हूँ। अच्छा, आप लेके आए जी। ये साहब का तारुफ आपको कैसे हुआ था? मैं 2018 में कतर में गया, वहाँ पे एक मेरे अहले तशी भाई थे, उन्होंने मुझे दिखाया कि ये बंदा जो है लबैत की तारीफ़ करता है, आप इसको सुने। तो शुरू में वीडियो आती थी लेकिन स्किप कर देते थे सही तरह, लेकिन जब उस भाई ने मेरे साथ तारीफ़ की तो मैं कैंडली मतलब ये रोज़ाना मैं ये वीडियो इनकी देखता था। उसके बाद मैंने उधर इरादा कर लिया कि मैंने जाना है और उधर जाके लाइव जो है ना ये इनको सुनना है। बाकी मैं देवबंदियों के मदरसे में तकरीबन 4 साल पढ़ा हूँ, ठीक है। उनके में और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो वो बात अच्छे थे? नहीं ये अच्छा, ये अच्छे हैं। हाँ। क्यों?
क्योंकि ये इल्मी बात करते हैं, वो ज़्यादा कहानियाँ करते हैं। और जो बंदी भी कहानियाँ करते हैं, कहानियाँ करते वो हैं। तो कहते हैं हम तो बिल्कुल कहानियाँ तो बरेलवी करवाते हैं, हम तो बिल्कुल सीधा चलते हैं। नहीं, ये दोनों बहन भाई हैं। अच्छा बहन कौन सी और भाई कौन सा? अच्छा चले कि देवबंद में भी तो बड़े बड़े आलिम दीन थे ना यार, सर देखो उनकी क्या उनकी बातें आपको समझ नहीं आई? नहीं, उनकी रोजी रोटी लगी हुई है। रोजी रोटी लगी जी, जिस बंदे का रोजी रोटी का ये दीन के साथ जुड़ जाए ना, वो फिर काम ही सच बोलता है। काम ही सच बोलता है। ऐसे ही क्या फ़र्क आया आपकी लाइफ में, क्या चेंज आया इंजीनियर साहब को सुनने के बाद? इंजीनियर साहब को सुनने के बाद मुझे ये आया कि पहले कंफ्यूज था यार, कौन सा जो है ना वो ये सच्चा है, कौन बंदा झूठा है, कंफ्यूज बंदा होता था। इस बंदे की वजह से, अली भाई की वजह से ये कंफ्यूजन दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कि फिरका वारियत में हमें कोई जी फिरका तो है ही नहीं है ना जी, फिरका तो है ही नहीं। उनसे अभी कोई हमारा लेना देना नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुकून है ना, तो सब हमारे जी अपने हाँ। भाई लगते हैं, हम जी तो हाँ। नफरत खत्म हो गई है। बाकी देवबंदियों के मदरसे में पढ़ा हूँ, वो उनका ये एक ही नारा था, अहले तशी काफर है और फलाने दिन वो जो शिरक करते हैं वो भी काफर हैं। ये अली भाई ने क्लियर कर दिया कि सब हमारे भाई हैं, सब भाई, सब इनकी इस्लाह करेंगे हम। जी हाँ, इस्लाह करेंगे। बाकी उनको हम काफर बोलते थे, उनकी जिद आ जाती थी कि ये हमको काफर बोलते हैं, हम इनको काफर बोलेंगे। ऐसे ही अब मेरे 3-4 भाई हैं अहले तशी, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनको दावत दे रहा हूँ, वो मुझे देते हैं, मैं उनको देता हूँ। बिल्कुल सही है। एक साथ खाना खाते हैं, साथ हम लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। अंदर गए थे पिक्चर बनवाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है जब देवबंदी फिरके में थे जी उस वक्त उनके बड़े आलिम दीन से मिल सकते थे इस तरह? नहीं, वो तो उनका अपना उन्होंने अपना रोब जमाया होता है। बाकी अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, ये हमारी दुआ है। हमारे उस्ताद हैं वो भी, उनमें भी उस्ताद हमारे हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। ऐसे आप जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई जी नाम हम आपका बता देते हैं। जी क्या शुक्रिया। करने आए थे आज? खैरियत सर पॉडकास्ट है मेरी एक छोटी सी, इंशाल्लाह चंद सवालात हैं वो करेंगे अली भाई के साथ। अच्छा, आपको अली भाई का तारुफ नेगेटिव हुआ था या पॉजिटिव हुआ था? मुझे नेगेटिव ही हुआ था। अच्छा, बल्कि नेगेटिव बाद में हो गया था, उन्होंने पॉजिटिव करवाया था। और वो अहले हदीस भाई थे, साथ ही आए हैं मेरे। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि माशाल्लाह एक बंदा है जो हम अहले हदीसों से भी ज़्यादा खड़क के बाबों के खिलाफ बात करते हैं। मैंने कहा यार मुझे उसका लहजा पसंद नहीं है, बहुत तल्ख लहजा और अजीब तरह बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार बात तो फिर इसी तरह होती है। फिर मैंने सुनना शुरू किया, टिकटॉक पे कुछ क्लिप्स देखे, करते करते आज वो शायद इतने बड़े फ़ैन नहीं है, लेकिन अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़ैन स्टूडेंट, वो कहते हैं स्टूडेंट। फ़ैन बड़ा प्यार करते हैं नबी से। आज पॉडकास्ट करने के लिए जो आए हैं, तैयारी की हुई है? सारे सवाल जी, लेके आए जी, हैं जी। आगे पीछे से? जी सर। अच्छा, आगे आज पीछे- कोई अच्छी पॉडकास्ट देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह। चलें, आप पॉडकास्ट कर ले, उसके बाद भी हम आपसे बात करेंगे। फिर ये है कि आपने बताना है ये कब अपलोड होगी, ताकि हमारी जो नाज़रीन हैं वो देख सके, उनको पता चल सके। आपके चैनल का लिंक हमारी इसी में आ जाएगा। जी हाँ, जी चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तलहा इजाज़ है, तलहा मैं इजाज़। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। माशाल्लाह। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। गुड। और थोड़ी बहुत फॉलोइंग भी है, 60-65 हज़ार फॉलोअर्स हैं वहाँ पे भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बट साहब ने मैंने इकट्ठा ही स्टार्ट लिया था, तो बट साहब यूट्यूब पे अल्लाह ने इनको वहाँ तरक्की दे दी, मुझे इंस्टाग्राम पे। जी व्हाट्सएप की वीडियो तो मैंने भी देखी है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे ही हैं सारे, हम 4 दोस्त हैं, चारों इकट्ठे। सर ये बताएं, आपको तारुफ हुआ था इंजीनियर साहब का नेगेटिव या पॉजिटिव? शुरू में जब हुआ था तो पॉजिटिव ही हुआ था। उसकी वजह ये थी कि चूँकि हमारे ख़ानदानी अहले हदीस फैमिली से बिलोंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे बस वही चीज़ें पता थी जो एक अहाते के अंदर सीखी थी, मस्जिद के अंदर या जुमे के अंदर। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो इंजीनियर साहब की जब वीडियोस देखते थे तो बड़ी नई लगती थी। तो जब हम डिस्कस करते थे अब्बा जान से और अपने अजीज़ों से जब डिस्कस करते थे तो उनका ये कहना होता था कि इनको सुने मत, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, ये इनके ऊपर बहस नहीं की जा सकती। तो हमारा उनसे एक सवाल होता था कि क्यों नहीं की जा सकती, जब सही बुखारी के अंदर अगर रफ़लीदैन की हदीस को डिस्कस किया जा सकता है, हम बाकी हदीस से डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग ये बाकी वाली जो छुपाने वाली चीज़ें हैं वो छुपाना नहीं है, बेसिकली वो कहते थे कि हम इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते। तो जहाँ तक बात है उस्ताद जी के लहजे की, वो थोड़ा कड़क है, और अगर आप डॉक्टर इसरार को भी सुनेंगे तो उनका लहजा भी आपको कड़क मिलेगा। ऐसे ही है। तो ये तो है एक चीज़, आपको कोई सच्ची बात करने के लिए थोड़ा कड़वा तो बनना पड़ता है। अच्छा, ये एक पहलू है सर उनका जो फनी है वो तो आपने देखा होगा यार। वो भी देखा। हाँ, वो तो एग्रेसिव स्टाइल है बात करने का, असल में मैं बड़े बैकवर्ड
بیکورڈ ایریا سے, بیکورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اندرون سے میرا بلانگ ہے, ہم لوگ وہاں رہتے ہیں, تو وہاں پہ سنی شیعہ اہل حدیث کا تو بہت تضاد رہتا ہے نا. جی جی ایسے آج بھی وہاں کے لوگوں کو وہ بابوں کی بات سننا ہی نہیں چاہتے, ان کے اوپر آپ کوئی بات ان کو آپ تلقین نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے ہیں. ان کو بھی آپ بولو گے نا یار تمہاری بک میں یہ ریفرنس ہے, تو وہ کہیں گے یار یہ کسی غلطی کی وجہ سے ایسا لکھا گیا ہے, ماننے پہ نہیں آئے, ماننے پہ نہیں آئے. بالکل. تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. علی بٹ صاحب کی وجہ سے ہم چونکہ الحمدللہ چاروں بڑے پرانے دوست ہیں. اچھا کام بھی ہمارے کام بھی اکٹھے کرتے ہیں, اکٹھے کام کرتے ہیں. آپ کا نام بھیا؟ سمنان خلیل. سمنان خلیل بھیا, آپ کا کیا کام ہے اس فیلڈ میں؟ میرا اس فیلڈ میں بھی تو میں ویسے ایسا دوست آیا ہوں, لیکن ویسے میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. ریئل اسٹیٹ کا. ہاں جی. یہ سب کا تعارف آپ کو کیسے ہوا تھا علی بٹ کے تھرو ہی تعارف ہوا. انہوں نے تو پازیٹیو کروایا, لیکن لوگوں سے میں نے پازیٹیو نیگیٹو دونوں سنا تھا. خود کیا جانا, خود کیا جج کیا؟ شروع میں نیگیٹو تھا, لیکن آہستہ 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 چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. جو بات کرتے ہیں تو ہی سے ریلیٹڈ اور یہ سارے معاملات, تو اوور آل مجھے پازیٹیو لگا. پازیٹیو لگا. ہاں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ دانش اکرام. دانش بھائی آپ بھی ساتھ ہیں؟ جی جی میں بھی ان کے ساتھ. علی بھائی کی ٹیم کے ساتھ. علی بٹ کا بچپن کا دوست ہوں میں. اچھا جو بچپن کے دوست ہیں, یہ بتائیں انجینئر صاحب کا تعارف آپ کو کیسے ہوا تھا؟ بیسیکلی انہوں نے ریسرچ زیادہ شروع کی تھی علی بٹ نے, اور ساتھ ساتھ میں نے بھی شروع کر دی. اس سے یہ پازیٹیوٹی آئی کہ اہل حدیث ہیں, ویسے بھی فیملی بلانگ کرتی ہے, تو چیزیں ہم ریلیونٹ صرف ایک ہی پڑھتے ہیں, اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور ہم حدیث سے ہوتی ہے تو بات اتھینٹک لگتی ہے, ورنہ نہیں لگتی. تو جب ہم ادھر ادھر کی باتیں سنتے تھے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں لازمی کرتے ہوتے تھے. ادھر سے ایک اتھینٹسٹی ہمیں اس لیے زیادہ ملی کہ یہ بات انسان جو کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف حدیث ہی کر رہے ہیں. جی جی ایسے ہی, اور اللہ کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دوسری یا تیسری بات کے اوپر نہیں جا رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں. اور ہم اس کے اوپر ہمارا ایمان اور ہمارا فرقہ تھوڑا سا اہل حدیثوں کا یہی ہوتا تھا کہ یار قرآن و حدیث کی بات سننی ہے تو وہاں پر لبیک کہہ لینا, ورنہ نہیں سننی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو ہم نے فالو کیا, اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ واقعی ماشاءاللہ اسی کے اوپر محنت کری جا رہے ہیں. پھر بھائیوں نے بھی انتھیٹک کیا کہ بھائی بھی کہنے لگ گئے کہ یار یہ تو واقعی بڑا اچھی ایک چیز تنظیم لے کے چاہ رہے ہیں, اور بڑا اچھا سفر شروع کیا. تو ایسے ایسے سنتے سنتے ماشاءاللہ ہمیں بھی موٹیویٹ آیا. میں آج ادھر آیا ہوں ٹائم نکال کے, حالانکہ میں کہیں بیزی تھا, لیکن میں آج آیا تو میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کی اصلاح کے لیے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, اور میں ہدایت کے راستے پہ نکلوں گا تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جائیں گے. بے شک. تو جس طرح علی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں, اس طرح میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں. میں فلاحی طور پہ, انتظامی طور پہ, تو انشاءاللہ کہیں سے سفر شروع ہوا ہے, کہیں نہ کہیں تک پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ بھیا, جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.